Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the part third of the previous video, that is psychiatric emergencies and crisis intervention. Today the contents to be covered will be the panic attacks and catatonic stupor, which comes in the psychiatric emergencies. The first thing is the panic attack. The word will indicate here कि होता क्या है इस disease में कि the individual will have the panic type of attacks in certain situations, in certain circumstances, ठीक. And basically ये episodes of acute anxiety होता है जब anxiety इस हद तक बढ़ता है कि वो control नहीं हो पाती है, because in any situations, in any part of the life we may face the what is called as anxiety, right? Examination anxiety or result anxiety or whatsoever, but when it crosses a limit, then it becomes the panic attack, and we get certain signs and symptoms in that also. So these are the episodes of the acute anxiety and panic which occur as a part of psychotic or neurotic illness. Any individual with any psychotic disease or any neurotic disease can have these panic attacks also. Otherwise the this anxiety, it is prevalent in the normal individuals as well. And this the client will experience certain symptoms like palpitations will be there, sweating will be there, tremors in the hands, and a feeling of choking. उसको लगेगा कि मुझे कुछ ये गले में है and I'm feeling like choke, I will vomit out, like that type. Chest pain उसको लगेगा, nausea लगेगा, abdominal distress, something not good, मतलब indigestion type, या उसको लगेगा कि फूड अभी ऐसे ही है, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस वैसे, या फियर ऑफ डाइंग, और पेरिस्थेसिस उसको लगेगा, व्हाट इज़ कॉल्ड एज, या चिल्स या हॉट फ्लैशेस. दिस पेरिस्थेसिस द टिंगलिंग सेंसेशन, इन द पर्टिकुलरली इन द एक्सट्रीमिटीज़ उसको लगता है. सो व्हेन द एंग्जाइटी, द नॉर्मल एंग्जाइटी crosses certain level, it happens to be in the form of the panic attacks, and then occurs certain signs and symptoms which the client may feel, and also the signs which the clinician or the psychiatrist or psychiatric nurse may feel over there. This is known as panic attack. Now this panic disorder, basically here are certain signs and symptoms like the upset of nausea, upset of stomach, which may call to the distant, what is called as disturbed stomach, जिसमें vomiting हो सकता है, nausea हो सकता है, sweating हो जाएगा एक individual को, dizziness हो जाएगा individual को, angina pectoris type chest pain उसको लगेगा, and he will feel the heart is going not in a good condition, a heart attack type symptom, or there will be vibration in the hands, arms, legs, and shallow breathing होगी, उसको सांस लेने में तकलीफ हो जैसे होगी, and a fear of death उसको हो जाएगा, ठीक है. It is due to when the anxiety reaches to a certain level कि individual उससे लड़ नहीं सकता है, cope up नहीं कर सकता है, तो certain signs and symptoms produce होता है. Then is the management of the panic attack. First of all, we have to give the reassurance. Until we give the reassurance to the client that everything is gonna be okay and everything is normal, these are just somatic symptoms जो आपको एंग्जाइटी की वजह से, जो आप कोप अप नहीं कर रहे हो, आपको इस वक्त पैनिक अटैक है, वो reassurance देना बहुत ज़रूरी है. Otherwise he will not calm down and these signs will not subside down. And then we have to search for the cause कि basically इसका cause क्या है, इसका पैनिक अटैक का cause क्या है, because unless we treat the cause,
these panic attacks will be coming, and the somatic signs जो अभी हमने डिस्कस किया था वो आते रहेंगे. And if there is more panic attacks, we go for the diazepam 10 mg or lorazepam 2 mg may be administered for calming down the client and controlling the certain panic attack symptoms, signs and symptoms which we have discussed here. In the next slide also we have how to stop a panic attack, like if we are subjected to have a certain panic attacks और हमें लगेगा कि एंजाइटी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है एक इंडिविजुअल में, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस वक्त अपना मुंह धोए, स्प्लैश वाटर करे अपने फेस पे, डीप ब्रीथ करे, ट्राई टू रिलैक्स एंड राइट डाउन द थिंग्स, राइट डाउन द थॉट्स विच जो आपके माइंड में आते हैं, या कुछ मेडिटेशन करने के लिए लाइक द नमाज आप अदा कर सकते हो उस टाइम, ताकि आपका सारे जो ये थॉट प्रोसेसेस है वो डाइवर्ट हो जाए. एंड वी हैव टू डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्फ बाय सर्टन थिंग्स, रिसाइटेशन ऑफ द कुरान और रीडिंग द बुक इफ़ यू नीड, ताकि ये जो सारे थॉट्स है वो डिस्ट्रैक्ट आउट हो जाए और आपके साइंस में रिलीफ मिले. Now the next is the catatonic stupor. Catatonic stupor और कैटाटोनिया आपने सुना ही होगा कि इसमें होता क्या है बेसिकली. एंड स्टूपर इट इज़ वेरी मच क्लिनिकल सिंड्रोम. अगर हम स्टूपर की बात करेंगे, इट इज़ द लैक ऑफ बेसिकली द मेंटल फंक्शन, ठीक है ना, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें क्लिनिकल सिंड्रोम बेसिकली ये एक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वड है, जैसे एकाइनेसिस, मतलब आपको पता ही होगा कि इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स नहीं होती है और म्यूटिज्म हो जाता है, द पर्सन डज नॉट स्पीक, एंड लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल्सो. एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सर्टन कैटाटोनिक साइंस एंड सिम्टम्स, जिसको हम कैटाटोनिक विड्रॉवल्स भी बोलते हैं टोटल में, या कैटाटोनिक स्ट्यूपर. नाउ कमिंग टू द साइंस जो इसमें होता है, जैसे कि म्यूटिज्म होता है, इंसान बिल्कुल चुप होता है, ही डजंट अटर द वर्ड. नेगेटिविज्म हो जाता है उसमें, मतलब आप उसको कुछ बोलोगे करने के लिए, ही विल रिफ्यूज़, वो उसका नेगेटिव ही करेगा विदाउट एनी लॉजिकल रीजनिंग का. स्ट्यूपर हो जाएगा डेफिनेटली, जो मैंने बोला कि मेंटल फंक्शन क्रिटिकल लैक हो जाएगी, जिसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज़ हो सकता है. एम्बिटेंडेंसी हो सकती है, मतलब एम्बिटेंडेंसी अगर आपको उसको कुछ एक्ट करने को बोलोगे, उसका टेंडेंसी ये रहती है टू डू द अपोजिट वेज ऑफ सर्टन डायरेक्शंस या सिचुएशन जो आपको कन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है. इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ योर वर्ड्स, इकोप्रैक्सिया, आपके एक्शंस को वो रिपीट करेगा. ऑटोमेटिक ओबीडियंस, या कभी कभी ऑटोमेटिक कुछ ज़्यादा ही वो आप मैं मतलब ओबीडियंस दिखाएगा, जो आप उसको बोलोगे वो करने लगेगा, ठीक है ना. पॉस्चरिंग, डिफरेंट पॉस्चर्स, पोजीशंस वो देगा. मैनरिज्म, ये आपने देखा ही होगा, ये पढ़ा होगा कि पर्टिकुलर वे वो आपकी स्पीकिंग या मूवमेंट्स कॉपी करेगा, ठीक है ना. या स्टेरियोटाइप ऑफ द बिहेवियर विच ही मे बी हैविंग द फिक्स टाइप ऑफ द आइडियाज़ फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और फॉर अ पर्टिकुलर टाइप. ये सारी साइंस कैटाटोनिक स्ट्यूपर में आ जाती है, ठीक है ना. वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. कमिंग टू द मैनेजमेंट, कि किस तरीके से कैटाटोनिक स्ट्यूपर को हम मैनेज करेंगे. फर्स्टली ensure the patent airway, because there are certain signs and symptoms जिसकी वजह से क्या उसको बोलते हैं, क्लाइंट अगर अनकॉन्शियस हो रहा है या पोजिशन उसकी वो पॉस्चरिंग दिखा रहा है, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज देयर मे बी के लॉस ऑफ ब्रीदिंग हो जाए, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी मस्ट मेंटेन द पेटेंट एयरवे. एडुकेट, हाइड्रेशन में रखना है क्लाइंट को, बिकॉज ही विल ऑटोमेटिकली इन सर्टन टाइप्स ही विल शो एग्जैजरेटेड बिहेवियर एक्सेसिव, वो आपको फॉलो करता रहेगा, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स विल मे गेट डिक्रीज्ड और द पेशेंट मे फील डिहाइड्रेटेड. एंड वी हैव टू परफॉर्म सर्टन कंप्लीट साइकेट्रिक हिस्ट्री उसकी लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, एंड वी हैव टू गो फॉर द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट.
एंड अगर अनकॉन्शियस क्लाइंट है तो उसके लिए वही ट्रीटमेंट रहेगा जो एक अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए होता है, कि हमें मेंटेन करना है एयरवे, उसकी पोजीशनिंग मेंटेन करनी है, उसकी साइड लाइनिंग सर की मेंटेन करनी है, एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है उसको, टाइमली मेडिकेशन इफ़ प्रेस्क्राइब्ड वो देने हैं, चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस, व्हाट्सो एवर आर द प्रोसीजर्स फॉर केयरिंग ऑफ द अनकॉन्शियस क्लाइंट, वो हमें यहाँ पे कैरी आउट करना है. एंड वी कैन गो फॉर नेक्स्टली फॉर द जनरल सपोर्ट, जैसे कि हाइड्रेशन जो मैंने बोला मेंटेन करना है, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, चेकिंग फॉर कार्डियक फंक्शन वेदर द हार्ट इज़ वर्किंग इन अ गुड कंट्री, अरेदमियाज तो नहीं है उसको, मर्मर्स तो नहीं है, या एक्सक्रीटरी फंक्शंस, बिकॉज इफ़ ही इज़ अनकॉन्शियस ही मे हैविंग द बेड सोर, उस वो चेक करने हैं. एंड वी हैव टू सी ऑल्सो फॉर द स्पेशल सपोर्ट कि इसके घर में कोई कॉज तो ऐसा नहीं है जो इसको ट्रिगर कर रहा है फॉर दीज थिंग्स, और वी हैव टू आइडेंटिफाई और ट्रीट दैट स्पेसिफिक cause which may be required. That was all about today, and I will be soon with the part 4 of this video soon, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.